السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 12واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 15ویں اور 16ویں آیت مبارکہ، ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے کہ جو انسان بھی صرف دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے، رب کائنات اسے دنیا کی نعمتیں تو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی چاہت آخرت کی نہیں ہوتی، لہذا اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، من جو بھی کانا ہے، یریدو چاہتا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، وزینتہا اور اس کی خوبصورتی، نوفی ہم بھرپور دیتے ہیں، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال، فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یبخسون کسی کمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین یہی ہیں، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا مگر، النار آگ، وحبط اور برباد ہو گیا، ما صنعوا جو انہوں نے کیا، وباطل اور اکارت گیا، ما کانوا یعملون جو وہ اعمال سر انجام دیا کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جو انسان بھی دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، ہم ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی بھرپور طریقے سے پہنچا دیتے ہیں، اور انہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی جاتی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ سارے کا سارا آخرت میں اکارت اور برباد ہو جائے گا، ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ امام صاحب نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ریاکاروں کی، جو دنیا والوں سے داد و تحسین کے ڈونگرے چاہتے ہیں، تو ان کو دنیا میں داد و تحسین مل جاتی ہے، اور یہ کسی مخصوص عمل کے ساتھ بات خاص نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تہجد ہے۔ جو بھی انسان کوئی بھی نیکی دنیا کے لیے کرے، نمود و نمائش ریاکاری کے لیے کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جس کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ دوسری طرف امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین اور ایمان نہیں تھا اور نہیں ہے، لہذا انہیں دنیا تو مل جائے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل فرمایا کہ جو شخص اپنی صبح و شام دن رات کی محنت اور مشقت
दुनिया के लिए करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया अता फरमा देते हैं। जब आखिरत में जाएगा तो आखिरत में उसके पास कुछ भी नहीं होगा, जबकि एक मुसलमान और एक मोमिन जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों से महदूद होगा। ये तो थी 15वीं आयत मुबारका। 16वीं आयत मुबारका में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, सूरह शुरा की 20वीं आयत मुबारका इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए, मन काना युरीदु हर्थल आखिरत नज़िद लहू फी हर्थिही वमन काना युरीदु हर्थ दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का तो मिजाज यही है कि वो कुरान की तफसीर सबसे पहले कुरान के साथ और फिर कुरान की तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के साथ फरमाते हैं। दीगर कुतुब तफसीर का जायज़ा लिया जाए तो अहले इल्म ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दरअसल इंसानियत की जो आफाकी तकसीम कर रखी है, यहाँ पर उस तकसीम का तज़किरा है कि इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में 2 किस्म के हैं। पहली किस्म ईमान वाले जो आखिरत के लिए अमाल सर अंजाम देते हैं और उनको शौक़ होता है कि अल्लाह ताला उनको आखिरत में इसका अजर दे, तो रब्बे कायनात उन्हें आखिरत अता फरमाएंगे। लेकिन ये लोग दुनिया में भी अल्लाह ताला की जायज़ नेमतों से मुँह नहीं मोड़ते, बल्कि शरई हदूद व क़यूद के अंदर रहकर उन नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और खुद फ़ायदा नहीं सिर्फ उठाते बल्कि पूरा इस्लामी मुआशरा जो है उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब के इन लोगों की सोच ये होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, कि ये लोग कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया में भी बेहतर अता फरमाइए, आखिरत में भी बेहतर अता फरमाइए और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। दूसरी किस्म वो है जो सिर्फ दुनिया के लिए काम करते हैं, दिन रात सुबह शाम उनका मकसद उनका हदफ वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया है। जो कुछ भी वो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए करेंगे, चाहे वो कारोबार करें, चाहे वो तालीम हासिल करें, चाहे वो कुछ भी करें, तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी होगा। आखिरत के लिए उनकी सोच उनकी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। ना उनका आखिरत पर ईमान होता है, ना आखिरत के लिए वो कोशिश करते हैं और ना आखिरत के लिए अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद रखते हैं। ऐसे लोगों को हमारी आम ज़बान में मटीरियलिस्ट कहते हैं, मादा परस्त, जो कुछ भी है इस दुनिया के लिए है। तो ऐसे लोग जो हैं रब्बे कायनात उन्हें दुनिया में बहुत कुछ अता फरमा देते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त अल्लाह ताला की ज़मीन पर अगर मजमूई तौर पर गौर किया जाए तो अल्लाह के बागी, अल्लाह के जो दुश्मन हैं उनका पलड़ा भारी है। और भारी किस हवाले से है कि वो लोग दुनियावी नेमतों से ज़्यादा महदूद हो रहे हैं बनिस्बत दीनदार तबके की। दीनदार तबका आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर दौर में तकरीबन पिसता ही रहा है और आज भी पिस रहा है। दूर मत जाइए, इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं दुनिया के, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त 24 नवंबर 2020 ईस्वी को। तो दुनिया में इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है और ये तकरीबन चल रही है पिछले कम बेश कोई 9-10 माह से। और आपको पता है कि इस कोरोना की वबा में सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर हुआ है वो अहले इल्म यानी उलमा है। और कैसे हैं इस पर आप ज़रा गौर करते जाएं तो आपको समझ आती चली जाएगी। तो ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, अल्लाह ताला का एक तरीक़ा है कि दुनियादार आज भी अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन एक मोमिन एक मुसलमान वो असल में उसकी नज़र अल्लाह ताला की आखिरत की नेमतों पर होती है। ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि दुनियावी ज़िंदगी के ज़ाहिर को ये लोग बहुत बारीकी से देखते हैं लेकिन आखिरत के बारे में ये लोग गाफिल हैं, दुनियादार। और जो मुसलमान सच्चा मुसलमान है उसका रवैया मोतदल मुतवाज़िन होता है। एक सच्चा मुसलमान ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत के लिए ही कोशिश करे, बल्कि दुनिया में जो नेमत रब्बे कायनात ने अता फरमाई हैं शरई हदूद व क़यूद के अंदर रहकर उनको इस्तेमाल करता है और करना चाहिए, लेकिन असल हदफ आखिरत होना चाहिए। और यही वजह है कि
सही हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी आखिरत की फ़िक्र करता है अल्लाह ताला उसके दिल में गिना पैदा कर देते हैं और अल्लाह ताला उसको दुनिया भी अता फरमा देते हैं। और जो दुनिया के लिए कोशिश करता है रब्बे कायनात उसके सामने गुर्बत और फ़कीरी रख देते हैं। और आपने अपनी आंखों से ऐसे बहुत सारे फ़कीर देखे होंगे जिनके पास सिवाय दौलत के और कुछ भी नहीं होता, रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। जिनको अल्लाह ने दीन का शऊर अता फरमाया वो कभी भी ऐसा नहीं करते। दुनिया का तालिब कभी उसका पेट नहीं भर सकता, बेशक उसे इस क़ारून का ख़जाना क्यों ना मिल जाए। हर वक्त उसे माल छिन जाने का खौफ रहता है, अपने कारोबार बिजनेस में घाटे का खौफ उसको सताता रहता है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ताइस अब्दुद दिनार ताइस अब्दुद दिरहम, दिरहम और दिनार का बंदा हलाक हो गया, अगर उसको कुछ मिले तो खुश होता है और अगर उसको ना मिले तो नाराज हो जाता है। असल बात यह है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, आखिरत में जहन्नम उनका इंतजार कर रही है। लेकिन जो इंसान आखिरत के लिए तगोदो करता है, इस दुनिया को आखिरत की खेती समझकर आखिरत के लिए मेहनत करता है, रब्बे कायनात उसे दुनिया भी अता फरमा देते हैं। जिस तरह के हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग अपनी आखिरत के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ने दुनियावी तौर पर भी उनको किसी का मोहताज नहीं रखा, बल्कि दुनियावी तौर पर भी उनकी ज़िंदगी जो है वो मिसाली अंदाज से गुजर रही है। दुनिया में सिर्फ माल दौलत सब कुछ नहीं होता, ज़हनी सुकून, इत्मीनान, और सबसे बढ़कर चीज़ यह है कि इंसान अल्लाह को फरामोश ना करे। तो हासिल कलाम यह है कि हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया अल्लाह ताला हमें बोनस में अता फरमा देंगे। इसके साथ ही इस इन दोनों आयत मुबारकात की मुख्तसर तफसीर मुकम्मल होती है। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम अगली आयत मुबारका पढ़ने की कोशिश करेंगे।